स्टूडेंट्स, तो आज आप तैयार हैं फर्स्ट पोएम की स्टडी करने के लिए। पोएम इज़ डस्ट ऑफ स्नो। आफ्टर द प्रोज अ लेटर टू गॉड यू हैव फर्स्ट पोएम डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. So dust of snow means particles of snow. In the northern countries in the winter season, snow fall and settles on trees. So these particles of snow that fall down from the trees are the dust of snow. डस्ट से अक्सर बच्चे सोचते हैं ना डस्ट, क्योंकि डस्ट मतलब सैंड, धूल. तो यहाँ पे इट डजेंट मीन दैट डस्ट. Dust is the dust of snow, small particles of snow. So this poem is composed by Robert Frost. It was published in 1923. So Robert Frost mainly describes the rural life in his poetry, and also the social and philosophical theme are the consistent theme in his poetry. So Dust of Snow is a very beautiful composition by Robert Frost. We learn from the poem that sometimes a very trivial simple things or moment becomes very significant for us. Significant means महत्वपूर्ण, बहुत महत्व वाले, important. They are proved of larger significance. They have a great impact on us. इम्पैक्ट यानी प्रभाव, असर, यानी कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें कुछ हमारी लाइफ में घटित होती हैं और या छोटे से एक इंसिडेंट को हम देखते हैं और वो बहुत गहरा असर, प्रभाव हम पर छोड़ता है. दिस पोएम डिस्क्राइब्स सच अ वेरी स्मॉल इंसिडेंट. इट ऑल्सो डिलीवर्स अ मैसेज अबाउट जजिंग थिंग्स. जजिंग थिंग मतलब जो ह्यूमन जजमेंट होता है, हम जिस तरीके से चीज़ों को जज करते हैं या उनके बारे में सोचते हैं. इट डिपेंड्स ऑन अ पर्सन हाउ ही जजेस थिंग्स, whether we feel a thing a source of happiness or sadness or positivity or negativity. तो ये हम पर निर्भर करता है. So let's proceed to the poem. So this is the very beautiful poem or first stanza of the poem. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. So who is the poet? Robert Frost. So here in the first stanza we see that Robert Frost is standing beneath hemlock tree. यानी वो एक hemlock tree के नीचे हैं. Hemlock tree, the meaning is given in the book, a poisonous plant with small white flowers. So hemlock is a coniferous tree. It is called poisonous tree. It depicts poisonous and toxicity. So poet is standing beneath the hemlock tree. The poet is very sad, depressed. He is not in good mood. So what happens there? Poet का mood कैसा है? Poet is in gloomy mood. He is unhappy. He is upset, full of negativity. Or in other words we can say that it was a bad day for poet. वो उस दिन खुश नहीं है. The poet is very sad and depressed. So what happens then? A crow came there. First line में the way a crow shook down on me. यहाँ poet क्या कह रहा है? The way a crow मतलब जिस तरह से crow आया, and what it did, जिस तरह से इसने dust particles को poet के ऊपर गिरा दिया या झाड़ दिया या फैला दिया. A crow came there and it sat on the tree or it flew over it. यानी वो उसका एक्शन जो है यहाँ पर वो क्लियर नहीं है कि वो आकर बैठा या उड़ा. So action is not clear here. It has described in the poem crow's action of shaking snow from tree as an unimportant action, but it becomes very important, significant for him. The action made him happy, and before this he was in great despair. So crow came and it shook off the snow from the hemlock tree on poet. एक बार फिर से देखिए. The poet is sitting or standing beneath a hemlock tree and a crow came there. It shook down
some particles of snow, dust of snow on the poet. So this is given in the first extract. So simply a crow comes and shakes off the snow particles on the poet. So what do you know about crow? Is crow like a singing birds whose voice is very melodious, who is popular for its singing, or it is like parrot, pigeon, sparrow, swan, ducks, which are so beautiful birds? ये सभी चिड़ियाँ बहुत प्यारी लगती हैं, पक्षी, और हम उनके सुंदर लगने के लिए, प्यारे लगने के लिए, सॉफ्ट डेलिकेसी के लिए उन्हें प्यार करते हैं, उनको एज ए पेट रखते हैं, और वो किसी न किसी एक अच्छे विचार से जुड़ी होती हैं. नो, बट इन केस ऑफ क्रो it is not so. Crow is an ugly bird. Its voice is also harsh. It is considered a bad omen and inauspicious for us. It is the symbol of death, despair, ugliness, bad omen, bad omen and negativity और gloom. तो ये सारी चीज़ें किस चीज़ की तरफ हमें दिखाती हैं, यानी वो अगलीनेस का और नेगेटिविटी का, दुख का, परेशानी का सिंबल है, ऐसा हम मानते हैं. बट इन द पोएम क्रो शेक्स ऑफ डस्ट पार्टिकल्स सिम्बलाइजेज शेकिंग ऑफ सैडनेस फ्रॉम पोएट्स हार्ट. दिस इज़ ऑपोजिट इन द पोएम, कि जबकि हम ऐसे कंसीडर करते हैं कि क्रो अगली है, हार्श है, बुरा माना जाता है, वो देखने में भी अच्छा नहीं है, उसकी आवाज़ भी अच्छी नहीं है, तो वो एक दुख का, नेगेटिविटी का और अगलीनेस का प्रतीक माना जाता है. लेकिन पोएम में ऐसा नहीं है. पोएम में क्रो का आना और उसका स्नो पार्टिकल्स को, डस्ट ऑफ स्नो को पोएट के ऊपर गिराना एक अच्छा एक्शन बन जाता है पोएट के लिए, बिकॉज इट चेंज्ड पोएट्स मूड. जिस एक्शन से पोएट का मूड चेंज हो जाता है. Let us see second stanza. Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had ruined. So what has changed his heart? The action of crow shaking off dust of snow from hemlock tree. तो ये पार्टिकल्स का, स्नो पार्टिकल्स का पोएट के ऊपर गिराना, ये क्रो का एक्शन था. एंड इट चेंज्ड पोएट्स हार्ट. पोएट्स हार्ट मीन्स इट चेंज्ड पोएट्स मूड, जो कि दुखी था, ग्लूमी था, डेस्पेयर था, और ही वॉज वरीड. वो अपनी लाइफ की कुछ प्रॉब्लम्स में घिरा हुआ था. उस दिन उसका जो दिन था वो अच्छा नहीं था. सो ही हैड अ वेरी बैड डे दैट डे. सो एवरीथिंग चेंज्ड. उसका मूड अच्छा हो जाता है. और ये किस वजह से होता है? क्रो के एक्शन की वजह से, कि क्रो आया और वो पेड़ पर से उसने जो स्नो पार्टिकल्स थे वो पोएट के ऊपर गिराए. एक सिंपल सा एक्शन था. एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रोइट. ही वॉज स्टक इन रिग्रेट. रोइट मतलब मीन्स हियर हेल्ड इन रिग्रेट, यानी वो दुख में था, वो दुखी था. So you know that this happens with us sometimes when we are not in good mood and we are feeling gloomy and we are dull. So what happens, the whole day we just keep saying that today is my mood is not good, today I am not going to do this, है ना. ऐसा होता है, आपके साथ भी ऐसा होता होगा. तो जो लोग पूरे समय इसको गाते रहते हैं, तो what happens at the end of the day, we have wasted the whole day, है ना. हमने पूरा अपना दिन ख़राब कर लिया होता है ये सोच कर कि हमारा मूड अच्छा नहीं है. और कभी कभी ऐसा होता है कि समथिंग हैपन सडनली, कोई भी छोटा सा कोई इंसिडेंट ऐसा होता है जिसकी वजह से मूड अच्छा हो जाता है. एंड ऐसा भी होता है कभी कभी अचानक से हमारे दिमाग में आता है कि आज मूड अच्छा नहीं, चलो ऐसा करते हैं, तो वो करने से हमारा पूरा मूड अच्छा हो जाता है और दिन काफ़ी आपका अच्छा कट जाता है. तो क्या देखा आपने कि ये हम पर खुद पर डिपेंड करता है कि वेदर वी हैव टू वेस्ट द होल डे इन सेइंग, कीपिंग आवरसेल्फ इन दैट रिग्रेट, इन दैट सैडनेस दैट वी आर सैड टुडे, आई एम नॉट हैप्पी टुडे, ऐसा कहते रहने से कि इट्स अ बैड डे फॉर मी, ऐसा कहते रहने से वो दिन ख़राब हो जाता है. पोएट ऑल्सो हैज़ द सेम थिंग, कि वो कहता है कि हैज़ गिवन माई हार्ट, यानी दैट एक्शन चेंज्ड माई मूड एंड made me happy
and I could save the rest of the part of the day. कि some part he wasted thinking that he was in a bad mood, it was a bad day, he was not happy, he was stuck in bad feelings और he was not getting any positivity. तो ये सब उसे लग रहा था, और अब इस एक्शन से उसका दिन चेंज हो जाता है और वो बचे हुए दिन को अपने कुछ अच्छा करने में या अच्छा सोचने में उसको बिताना चाहता है. So what do we see? So that falling of the snow particles on poet changed his mood. He felt happy. He could feel soft and cold touch of snow particles, and he starts feeling refreshed. So in this way, the simple moment proved very significant and saved the rest of the day of the poet, which was going to be wasted by him if he was feeling sadness, and if he had not come under the hemlock tree. यहाँ पे हेमलॉक ट्री जो कि एक पॉइजनस ट्री माना जाता है और क्रो अगली बर्ड माना जाता है, दोनों ही चीज़ें गलत प्रूव हो जाती हैं. ह्यूमन जजमेंट की हम बात कर रहे थे कि हम सोचते हैं किसी चीज़ को कि ये ख़राब है, उसके बारे में हम कुछ अपना कॉन्सेप्शन बना लेते हैं, तो वो हमें चेंज करने की ज़रूरत है. हम किसी ख़राब चीज़ में से भी कोई हैप्पीनेस ढूंढ सकते हैं. और मेन बात है कि नेचर, हेमलॉक ट्री एंड क्रो बोथ आर द पार्ट ऑफ नेचर, दोनों ही प्रकृति हैं. और नेचर, आई हैव ऑलवेज टॉट यू, दैट हैज़ अ वेरी सूदिंग इफ़ेक्ट. हमें सूद करती है, कंसोल करती है, रिफ़्रेश कर देती है. तो हम प्रकृति में अपनी सारी प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन है वो ढूंढ सकते हैं. कभी जब हमारा मन नहीं लगता, हम परेशान होते हैं, तो हम वो समय अगर हम प्रकृति के साथ बिताते हैं तो हम खुश हो सकते हैं. सो पोएट हियर trying to convey that even simple and ordinary incidents have great significance in people's life. Actually, our behavior, our attitude, our way of thinking makes things good or bad. You know, everybody's life is full of problems. We have many worries in our life. We have many problems, responsibility, obligations in our life, and we have to live that life. It depends on us कि हम उन परेशानियों में, उन ऑब्स्टेकल्स में अपने जीवन को कैसे जीते हैं. वी मस्ट ट्राई टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स, बजाय कि हम ये सोचते रहें, कहते रहें कि हमें बहुत परेशानी है, हम बहुत परेशान हैं. तो वी मस्ट ट्राई टू एंटरटेन आवर सेल्फ, है ना. हमें अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में सोचना चाहिए. फाइनली इन द पोएम द पोएट ऑल्सो फेल्ट द सेम थिंग. ही कुड नो द सेम थिंग, दैट इफ़ ही had not been entertained by the crow. entertain से यहाँ पे मतलब है क्रो का आना और उसका पेड़ से स्नो पार्टिकल आना. अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो पोएट विल बी रिपेंटिंग द होल डे. वो दुख मना रहा होता, पछतावा कर रहा होता. सो नेचर इज़ वेरी ब्यूटिफुल. वी मस्ट लव कंपनी ऑफ नेचर एंड वी शुड पास टाइम विद द नेचर. यहाँ पोएम में कुछ पोएटिक डिवाइसेस हैं जो कि आप देखेंगे. सो वी हैव कंप्लीटेड explanation of the poem here. Now I tell you something about the figure of speech, poetic devices that are used in the. First of all, we talk about the rhyming scheme of the poem. So here we have first stanza. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. So you see the first line, the way a crow. So crow, प्राइमरी क्लासेस में आपने राइमिंग वर्ड्स तो पढ़े हैं, CROW, क्रो. तो हमें ये देखना होता है कि क्रो से सेम वर्ड कौन सा मैच कर रहा है. राइमिंग स्कीम स्टेंजा वाइज देखी जाती है. सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम. सो द वर्ड क्रो, लास्ट पोएम के लास्ट जो वर्ड को हम देखते हैं कि वो कैसे मैच कर रहा है. ओके, एक्चुअली राइमिंग स्कीम है क्या? रिपीटिशन ऑफ राइमिंग साउंड्स, है ना, जिसमें लय होती है, जैसे हम हिंदी में पढ़ते तुकबंदी होती है. सो रिपीटिशन ऑफ राइमिंग साउंड्स एट द एंड ऑफ द लाइन्स ऑफ पोइट्री.
सो पोइट्री की जो लाइंस होती है जैसे द वे आ क्रो, तो हम इसमें लास्ट वर्ड को लास्ट लेते हैं. फिर शुक डाउन ऑन मी, तो वी सी दिस वर्ड मी. सो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, ये क्रो एंड मी देयर इज़ नो राइमिंग स्कीम. इनमें क्रो ओ की साउंड दे रहा है और मी में ई, तो इसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं है. यहाँ पे फर्स्ट वर्ड से सेकंड वर्ड लाइन का सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड मैच नहीं कर रहा है. ओके, तो इसी तरह से फिर हम नेक्स्ट देखेंगे, दैट इज़ स्नो. हम नेक्स्ट देखेंगे स्नो. तो अब हम यहाँ पे क्या पाते हैं, क्रो इज़ मैचिंग विथ स्नो. क्रो स्नो सेम राइमिंग वर्ड है, CROWSNOW. ओके, एंड देन अगेन दिस ट्री. ओके, सो वी सी दैट दिस ट्री इज़ मैचिंग विथ मी ट्री, और ये यहाँ पे था क्रो एंड स्नो. सो दिस इज़ कॉल्ड राइमिंग स्कीम. इसको हम राइमिंग स्कीम कहते हैं. अब हम इसे नेम कैसे देते हैं, लेट्स सी. यहाँ पे हम फर्स्ट जो लाइन होती है पोएम की उसको हम ए लिखते हैं. ओके, ए. अब नेक्स्ट ए क्रो वर्ड है, तो हम क्योंकि दिस इज़ नॉट मैचिंग विद मी, सो वी विल पुट हियर बी, राइट हियर बी. इसको हम ए बी से ही शुरू होता है ये. फिर अगेन हम देखेंगे क्रो, यहाँ हम जब आते हैं तो हम देखते हैं ये मैच कर रहा है, तो हम इसे नया जो लेटर है, अल्फ़ाबेट है, वो नहीं देंगे, हम इसको ए ही देंगे जिससे ये मैच कर रहा है. दिस वे ए. ओके, दिस ए एंड दिस ए. अगेन वी सी ट्री, तो ट्री इज़ मैचिंग विथ दिस ए बी, देन अगेन ए, और ट्री मैच कर रहा है मी से, तो हम इसको फिर से मी देंगे. सो दिस बिकम्स द राइम स्कीम, ए बी. सो फर्स्ट एक्सट्रैक्ट की जो स्टेंजा यहाँ पर है डस्ट ऑफ स्नो का, उसकी राइमिंग स्कीम हो जाती है ए बी, राइट. सो नाउ कम टू द सेकेंड स्टेंजा. Second stanza is here. Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had ruined. So let's see. यहाँ पर भी हम बिल्कुल ऐसे ही करेंगे. This becomes A B उधर आपका हो गया है. अब हम यहाँ इसको आगे बढ़ेंगे. This will be C. Okay. So heart, my heart of mood, some part had ruined. तो आप देख रहे हैं हार्ट एंड पार्ट ये मैच कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम इनको सी के बाद दिस इज़ नॉट मैचिंग विद द सी, सो ए बी सी, नेक्स्ट कम हियर डी. ओके, देन नेक्स्ट लेटर विल नॉट कम बिकॉज अब हमें यहाँ पे एकदम पता चल जाता है कि हार्ट से पार्ट मैच कर रहा है, तो हम इसको सी ही नेम करेंगे. ओके, एंड देन रोइट, यहाँ पे मूड रूड इस तरह से टैली कर रहा है, मैच कर रहा है, राइम कर रहा है, तो हम इसको फिर से दे देंगे टी. सो इट बिकम्स सी डी. सो दिस इज़ द राइम स्कीम. ओके, दिस बिकम्स द राइम स्कीम. लेट्स राइट हियर C D. तो कंप्लीट पोएम की राइम स्कीम ये हो जाती है A B ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा एंड द सेकेंड इज C D. तो अब हम बात करते हैं पोइटिक डिवाइस यानी जो फिगर ऑफ स्पीच होते हैं उनकी. फर्स्ट में हम फिर से पहुंच जाते हैं. सो द वे अ क्रो शुक ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हैमलक ट्री. तो इसमें हमने राइमिंग स्कीम स्टडी किया है. नेक्स्ट में हम देखते हैं वी हैव अलिट्रेशन. ओके, अलिट्रेशन क्या है? फिगर ऑफ स्पीच है. occurrence of the same letter and sound, रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड. जब रिपीटिशन होता है कॉन्सोनेंट साउंड का तो वहाँ पे अल्ट्रेशन होता है. और अल्ट्रेशन and there is repetition of vowels, this is called assonance, and when there repetition of consonants this is called
कॉन्सोनेंस. ओके, तो यहाँ पे कहाँ है रिपीटिशन? एच एच. हैज़ गिवन माई हार्ट. ओके, इन द सेम वे इन थर्ड लाइन एस एस. एंड सेव्ड सम पार्ट. नेक्स्ट जो पोइटिक डिवाइस है यहाँ पर, अभी मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर क्या है? अलिट्रेशन. ओके, सो नेक्स्ट है एनजाममेंट. एनजाममेंट. ओके, नेक्स्ट है. सो लेट्स सी ये यहाँ पर कैसे है एनजाममेंट. व्हेन इन अ वर्ड्स देयर इज कंटिन्यूएशन ऑफ अ सेंटेंस विदाउट अ पॉज बियॉन्ड द एंड, यानी लास्ट तक. व्हेन देयर इज कंटिन्यूएशन ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस कंटिन्यू चलता रहे और उसमें पॉज ना आए, तो वहाँ पे एनजाममेंट होता है ऑफ अ स्टेंजा. ठीक है, तो यहाँ पे स्टेंजा है. यहाँ पे आप देख रहे हैं हार्ट मूड हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूइड. लास्ट में यहाँ पे आप फुल स्टॉप देख रहे हैं, बीच में यहाँ कहीं कोई पॉज नहीं है. यहाँ से जब सेंटेंस शुरू होते हैं तो यहाँ कंप्लीट हो रहा है. ओके, सो यहाँ पे इसको बोलते हैं एनजाममेंट. सो ये यहाँ पे पोइटिक डिवाइसेस और राइमिंग स्कीम है. अलिट्रेशन की अगर हम बात करें अलिट्रेशन की, तो अलिट्रेशन बिकॉज दिस इज इम्पॉर्टेंट पोइटिक डिवाइस, तो मैं एक और एग्जांपल देके आप यू कैन सी द लाइन्स हेयर. द फेयर breeze blew, so this B, B. The white form flew, F, F. The furrow followed free. Okay, so यहाँ पे आप रिपीटिशन देख रहे हैं लेटर्स का, कॉन्सोनेंट्स का. So here we see, here we find alliteration. B and F and S sound in the phrase breeze blew, the white form flew, furrow followed free, and silent C. इसके rhyme of the ancient mariner से ली गई हैं लाइन्स. पर भी alliteration है when there is repetition of the same letter sound. So I hope now you understand. I hope you must have understood the poem well, and the next poem is Fire and Ice, and soon you will get the video of this poem. And और अभी भी आपको पोएम से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और व्हाट्सएप पे जो बच्चे जुड़े हुए हैं ग्रुप में वो वहाँ कमेंट कर सकते हैं, और वैसे आप वीडियो पे कमेंट करिए, सो वो मुझे जल्दी से पता चल जाएगा, तो मैं आपके डाउट्स जो भी हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो क्लियर कर दूँगी. फॉर नोटिफिकेशन यू हिट द बेल आइकन. आपको पता है कि आप नोटिफिकेशन आपको मिल जाते हैं तो आपको पता चल जाता है, आप देख पाते हैं उसको, तो उसको बार बार सुनिए, पोएम को अच्छे से देखिए और समझिए.